Jai Jinendra to everyone who is watching me and who has joined our event, the episode 3 of MKM Talk Show. MKM Talk Show is basically a talk show where we have come up with for the girls, those who have struggled a lot and those who have achieved by struggling so much, to bring up their stories in front of everyone so that others, those who are yet to go with that phase of life, can get motivated and can get enthusiastic with the feelings or with the vibes they are about to face in their life further. यहाँ पे हम जितनी भी लड़कियां अब तक हमने दो जो लड़कियां हमारे साथ हो चुके हैं, जिनके टॉक शो पे आ चुके हैं ऑलरेडी, और जो आगे भी आने वाले हैं, वो वैसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपने लाइफ में स्ट्रगल करके आज बहुत कुछ अचीव किया है और आज वो इंडिपेंडेंट है. तो दिस इज फॉर अदर गर्ल्स जो या फिर जिनके माँ बाप अगर नहीं अलाउ करते, तो वो शायद ये सब चीज़ें लेके मोटिवेट करे और वो भी चाहे कि हमारी लड़की भी कुछ खुद से करे और इस मुकाम तक पहुँचे. तो इसीलिए हमने MKM टॉक शो का एक प्रोग्राम चालू किया है विच विल गो क्वाइट लॉन्ग. सो जो अब तक जुड़े हैं, जिन्होंने लास्ट 2 एपिसोड्स भी देखे और जो आगे भी बहुत एक्साइटेड है कि कितनी लड़कियां आने वाली है, कौन कौन आने वाला है, और जो खुद अभी वैसे अचीवमेंट्स ला रहे हैं ताकि उनको भी यहाँ पे आने का मौका मिले. आई वुड थैंक यू ऑल वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम पे एंड हमारे साथ हो आप और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना रहे हो. So thanks a lot all the viewers, all the participants, all the speakers, our guests, and all the hosts too. Basically, for now, Nikita Surya, the Adhyaksh of Mewad Kanya Mandal, and Divya Lodha, the Koshadhyaksh Treasurer of Mewad Kanya Mandal, Mumbai. So I guess we should start with the episode 3. And I guess introduction was enough to let you know about the event and what's further beyond this. So thank you so much all the viewers for joining us, and those who are still about to join, I would welcome you all between the event too. We have many of the MKM girls and also many of the outsiders with us, so it feels great that you're watching us, MKM Mumbai. Thank you so much. So coming up with my introduction, I am Preeti Nahar, the secretary of Mewad Kanya Mandal, Mumbai. Thanks to my president and my treasurer to support me and give me this opportunity to host for the episode 3 of MKM Talk Show. I would now introduce you the the guest of our event for today. Basically, she is an engineer in electronic and communication. She is a graphic designer, she is a nail artist, adding on to it, she is a craftswoman, and she is also a dance choreographer. Yeah, she has done a lot more in her life, and this is just a career part, or you can say this is just one phase of life. So you can just imagine if she carries so much, अगर वो इतना कुछ कर रही है एक फेस ऑफ लाइफ में, तो उसने बाकी लाइफ में भी कितना कुछ किया होगा. तो ऑब्वियसली हम ऐसे इंसान को ज़रूर सुनना चाहेंगे, ऐसे इंसान की बायोग्राफी ज़रूर पढ़ना चाहेंगे. तो आज मैं इनवाइट करती हूँ हमारे टेड टॉक, हमारे MKM टॉक शो पे द स्पीकर ऑफ द एपिसोड 3, Kinjal Surana. Yes, Kinjal Surana. She is from Kandiwali Kanya Mandal. I would ask Kinjal Surana to join me on live. I guess everyone, those are watching, are excited. Since मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है, तो आपको भी पता चल गया आप कि कहीं a star in her own self. So yes, we all would like to hear you. Welcome Kinjal Surana to the episode 3 of MKM Talk Show. Thank you so much. Preeti, thank you so much. Thank you MKM for giving me this opportunity कि मैं अपने बारे में बता सकूं और एटलीस्ट कुछ गर्ल्स को जो अफेक्ट हो मेरी वजह से, जिनको इंस्पिरेशन मिले. Thank you MKM. Yes, you have been an inspiration for your own self too. So obviously आप दूसरों के लिए तो बहुत बड़े इंस्पिरेशन बनोगे.
Starting with the episode, yes, firstly I would like, because हर कहानी बचपन से शुरू होती है, तो obviously I would like to know about your childhood, or from where did you start growing, where did you feel that yes I'm growing there. uh, so yes, Kinjal Sara. Yes, मतलब बेसिकली चाइल्डहुड का बोलूंगी तो मैं फर्स्ट चाइल्ड थी, सो आई वॉज वेरी पैम्पर्ड, सबकी लाडली थी घर पे, सब लोगों ने बहुत लाड प्यार से बड़ा किया, तो कोई प्रेशर नहीं था, कुछ एम नहीं था, जो किया चला, किसी ने कभी कुछ डांटा नहीं, कुछ बोला नहीं करने के लिए, बट इनसाइड मन में कहीं था कि कुछ करना है, थोड़ा फेमस होना है, बस लोग मुझे जाने, ऐसा कुछ करना है, तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो डिसाइडेड नहीं था कुछ भी, बट कुछ ऐसा करना है कि लोग मुझे जाने, मैं थोड़ा फेमस हूँ, बस बस वो था मन में कहीं ना कहीं, तो कंटिन्यू किया, जो था, जो अपॉर्चुनिटी मिली वो ग्रैब की और कंटिन्यू किया अपनी लाइफ को। ओके, वाह, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा होता है कि जब गर्ल्स जनरली बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होती है फैमिली के साइड से, तो आपको भी वो चीज मिली, स्टिल आपने लाइफ में इतना कुछ किया, हाँ, मतलब कुछ सल्यूट। प्रेशर नहीं था, कुछ डिसाइडेड भी नहीं था कभी के क्या करना है क्या नहीं, बट मन में था कहीं ना कहीं कि कुछ तो करना है। यस यस, दैट्स रियली ग्रेट कि आपने चाइल्डहुड में कुछ ना सोचे बिना भी आज आप ये मुकाम तक पहुंच चुके हो, दैट्स ग्रेट थिंग। सो कमिंग अप विद सेंस, आपका चाइल्डहुड बहुत ज्यादा फ्लुएंटली गया है, हर चीज बहुत, आपको हर चीज मिल चुकी थी, तो फिर भी आपने हर एक चीज के लिए कहीं ना कहीं सोचा होगा कि अगर आज, अगर समझो मैं आपका एक पार्ट लेती हूँ कि आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप हमें ये बताओ कि आपने इंजीनियरिंग चूज करते हो क्या सोच के इंजीनियरिंग चूज की, लाइक कहीं ना कहीं एक थॉट कि आपके उसके पीछे रीजन, वो आपने क्यों लिया, वैसा कुछ। इंजीनियरिंग बेसिकली जब 11th 12th में आते हैं तो उसके बाद डिसाइड करना पड़ता है कि आगे क्या करना है, तब इतना सोचा नहीं था, फ्रेंड्स थे आसपास के तो हमेशा बोलते थे कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तब हम यही डिसाइड करते थे, बेसिकली इतना एक्सप्लोर भी नहीं करते, तब हमको पता भी नहीं होता था कि इतने सारी फील्ड्स है, इतना सारा है, बेसिकली लोगों को यही सुनते हुए देखते थे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पीए बनना है, तो मैंने भी तभी फ्लो फ्लो में इंजीनियरिंग चूज कर ली। फिर इंजीनियरिंग चूज किया, मैं हॉस्टल लाइफ में गई तो मैंने देखा कि लाइफ बहुत लंबी है, हमको लाइफ को बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है हॉस्टल में। अब बचपन से इतनी पैम्पर्ड रही, बट हॉस्टल में सारा काम खुद करना पड़ता था, एवरीथिंग वाज, मतलब खुद ही करना है सब कुछ, कोई हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है। फिर इंजीनियरिंग एंटर करने के बाद आई रियलाइज के इंजीनियरिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी मैं इंजीनियरिंग में कुछ नहीं एक्सप्लोर कर पाऊंगी, फिर इसीलिए इंजीनियरिंग, बट मैंने उसको छोड़ा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मेरा आधा हो गया था तो मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको ग्रैब किया, कंप्लीट की इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने फिर से डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ और करना है, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग किया, फिर मैंने साथ में कोरियोग्राफी भी किया, अपना नेल आर्ट का पैशन था वो भी कंटिन्यू किया, फिर अब जाके मैंने अपना खुद का पेज स्टार्ट किया, अनोखे उपहार ग्राफ्टिंग का, गिफ्टिंग का पेज है, तो अब वहां से स्टार्ट किया, तो अब लाइफ इज लाइक, अब करियर पाथ थोड़ा ट्रैक पे आया है। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट, लाइक ये सुन के ही काफी अच्छा लगता है कि आपने हर चीज को गो ऑन होने दी, लाइक आप कहीं पे भी अटके नहीं कि मतलब ठीक है इंजीनियरिंग नहीं हुआ तो आपने ये चूज किया, ये चूज किया, ये बहुत एक बड़ी बात होती है, कोई चीज एक इंजीनियरिंग के फील्ड से डायरेक्ट एक डांस की फील्ड पे जाना या ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड पे जाना, दिस इज नॉट इजी। बेसिकली आप हमेशा ये सोचते हो कि जो चीज आपने स्टार्ट की है कहीं ना कहीं आप उसमें ही आगे बढ़ते जाओ, लेकिन आपने वो चीज नहीं की, तो ये काफी ज्यादा बहुत बड़ी बात है, और सल्यूट टू योर करेज टू स्टार्ट न्यू थिंग एवरी टाइम, लाइक जब आपने डांस कोरियोग्राफी की उसके बाद वापस एक क्राफ्ट वुमेन की तरह आप बाहर आए, सो कैरिंग ऑन विद एवरीथिंग एंड चेंज कांस्टेंट चेंज आई वुड से, बिकॉज हर बार आपकी चीजें चेंज हुई है, सो दिस इज वेरी इंस्पिरेशनल थिंग फॉर ऑल द गर्ल्स देयर, जो सोचती है कि आज एक चीज, मतलब अगर मैंने सीए ले लिया है तो मैं अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाऊं जस्ट बिकॉज कि नहीं मेरे को क्लियर होना है, क्लियर होना है, वो चीज नहीं होती। आपने ठीक है नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, आप वो चीज में मूव ऑन होते रहो, और अपने लाइफ का कोई भी पार्ट ऐसा वेस्ट नहीं होने दिया कि मैं एक साल घर पे रही या 1 2 साल में आराम से बैठ गई, वेट किया कि नहीं अब मेरे दिमाग में कुछ आएगा, अब मेरे को कोई चीज में इंटरेस्ट आएगा, ये चीज आपने नहीं होने दी, तो ये बहुत बड़ी बात है। दोज आर वॉचिंग, आई गेस ये उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि हमें लाइफ में कहीं रुकना नहीं है, और हमें जैसे जो सामना है हमें उसका सामना करना और हमें बढ़ते रहना है आगे। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग किंजल। आई वुड, जो आपने चूज किया हर बार, जो आपने एक चेंज चूज किया वगैरह वगैरह, तो आपकी अभी जो लाइफ है उस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, द इम्पैक्ट ऑफ द फील्ड्स दैट यू चोज ऑन योर करंट लाइफ, व्हाट ऑन द करंट स्टेटस ऑफ योर लाइफ, कैन यू एक्सप्लेन अस इन शॉर्ट?
बेसिकली इज लाइक थोड़ा सा मतलब ऐसा कुछ मतलब ये था कि मेरे को कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था, मतलब लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था खुद के अंदर कहीं ना कहीं कि मैं ये चीज नहीं कर सकती या मुझसे नहीं होगा। बट जैसे जैसे मैं फील्ड्स एंटर करते गई, लोग मुझे अप्रिशिएट करते गए, मैं लोगों को जानने लगी, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। तो उससे मतलब कैसा होता है ना कि अब खुद पे विश्वास होने लगता है कि हाँ ठीक है मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, मैं भी अचीव कर सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा इन चीजों से मिला है। वो दैट्स रियली अगेन अ गुड थिंग कि हर चीज से कॉन्फिडेंस अगर मिल रहा है तो आप आगे अगर कुछ सोच भी रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस ही आपको एक करेक्ट। स्टार्ट देगा कि पुश ऑन करेगा कि नहीं मुझे ये चीज करनी है करके मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे को ये करना है। दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग अगेन। सो आप अभी क्या कर रहे हो? व्हाट इज योर करंट स्टेटस या आपकी जॉब प्रोफाइल या अभी आप क्या किस चीज को फाइनली आपने आगे मूव किया है वो बताओ आप मैं अभी। करेंटली बेसिकली मैंने इतने करियर ऑप्शन चूज किए, मैं इंजीनियरिंग छोड़ के अभी सब कर रही हूँ। मैं जॉब भी कर रही हूँ मैं क्राफ्ट ओके। का अपना पेज भी चला रही हूँ, मैं साइड बाय साइड कोरियोग्राफी भी करती हूँ, कभी नेल आर्ट भी कर लेती हूँ। बेसिकली मैं अपने इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी सब चीजें कर रही हूँ साथ में। आगे मतलब इसका मतलब ये है कि आप आपने हर चीज को अपना एक पैशन बनाया कि आपको वो चीज yes. कंटिन्यू मैंने करनी है कोई और चीज आप उसको छोड़ी नहीं है, मैं सब कंटिन्यू कर रही हूँ। कोई ये चीज मैंने बहुत छोड़ी नहीं है लाइफ में कि कोई चीज छोड़ू कोई नहीं छोड़ू। हाँ आपने बहुत चीजों पे मेहनत की और अगर आप आज उसको लेके चल रहे हो सो दैट्स अ गुड थिंग। वो आपने अपने आपने उसको अपना पैशन बना के रखा एंड यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट। दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड ऑल्सो अगेन आई वुड आस्क पता कि सिंस आपने इतना कुछ किया है और आप कभी रुकी नहीं लाइफ में तो ऑब्वियस है कि आपका कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रहा होगा या आपने किसी को वो नजरिए से देखा होगा जिसको देख के आपको ऐसा लगा नहीं मुझे भी इसकी तरह बनना है। सो हु इज योर रोल मॉडल फॉर एवरीथिंग यू चोज? बेसिकली रोल मॉडल देखूंगी तो मैं हमेशा से अपनी छोटी बहन से, मतलब यूजुअली लोगों को होता है कि मैं बड़ों से किसी से इंस्पायर, बट मैं हमेशा अपनी छोटी बहन से इंस्पायर हुई हूँ। वो अपने लाइफ में इतनी फोकस्ड है, इतनी कॉन्फिडेंट है कि हमेशा उसको देख के लगता है नहीं यार ये मतलब इतना तो होना चाहिए लाइफ में, इंसान को इतना कॉन्फिडेंस इतना मतलब फोकस्ड होना चाहिए लाइफ में। किसी को कुछ तो होने, और पापा भी मेरे हमेशा बोलते हैं कि कभी कुछ रुकना नहीं चाहिए, हमेशा किसी को कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। तो बेसिकली मतलब आप अपनी छोटी बहन और बैलेंस। पापा को सामने देखते हो और फिर हर चीज को आगे फॉरवर्ड करते हो वैसा। ओके। तो अगर मैं बोलना चाहूंगी सिंस आपने बताया आपकी एक हॉस्टल लाइफ भी रही है और उसके बाद आपने हर चीज कंटिन्यू भी की है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक थोड़ा स्ट्रगल होगा या कहीं ना कहीं एक वर्स्ट फेज आया होगा या कहीं ना कहीं एक बेस्ट फेज आया होगा। तो जो बेसिकली लाइफ में ऐसा होता है जनरली कि नहीं मेरे लाइफ में ये एक वर्स्ट फेज था जहां से या तो मैं बहुत आगे बढ़ गई या तो मैं बहुत नीचे गिर गई और आप आज इतना आगे बढ़े हो तो वैसा कोई एक वर्स्ट फेज या एक बेस्ट फेज जिसने आपको इतना मोटिवेट किया हो वैसा कुछ आप अगर अपने हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहोगे तो शायद उनके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल होगा वो चीज। ऐसा हुआ था जब मैं जॉब अपनी और अपना पेज दोनों स्टार्ट करी थी, मैंने अनु के ऊपर स्टार्ट किया, उसके बाद मैं अपना जॉब भी कंटिन्यू कर रही थी। नाउ टाइम वाइज मैं 9 to 6 जॉब करती थी, फिर उसके बाद घर पे आती थी, ऑर्डर्स कंप्लीट करती थी, तो बहुत टाइम, फिर कुछ नया बनाओ अपने पेज के लिए, हर चीज मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, थोड़ा हेक्टिक हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक चीज को होल्ड पे रख देना चाहिए। तो मैंने तब ये डिसाइड किया कि मैं अनु के ऊपर को होल्ड पे रखूंगी, तो मैंने अपने ये पेज को होल्ड पे रखा। बट कहीं ना कहीं लगता है ना, वो मन में ऐसा होता है कि नहीं वो मेरी चीज है तो मैं उसको कंटिन्यू करूँ, वो छूट रही है पीछे, मतलब वो था मन में कहीं ना कहीं वो फील हो रहा था कि नहीं वो नहीं छूटनी चाहिए, वो मेरी चीज थी, मैंने स्टार्ट की थी तो मुझे वो कंटिन्यू करनी चाहिए। तो मेरे मम्मी ने, फिर मैं वो सोचती थी तो मम्मी पापा समझाते थे कि नहीं अगर कुछ करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को पुश करने से अगर हमको वो चीज मिल जाती है तो क्यों ना हम पुश करें। तो फिर वापस मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा मैं ज्यादा मेहनत करूँ, अगर थोड़ा सा ज्यादा ये करूँ तो मैं अपने चीज गोल्स को अचीव कर पाऊंगी। तो फिर मैंने वापस स्टार्ट किया, बट वापस स्टार्ट किया तो वो क्लाइंट्स वो पेस छूट गया था, बीच में यस। गैप आ गया था 2-3 मंथ्स का, तो वापस क्लाइंट्स बिल्ड करना, वापस वो लोगों से कम्युनिकेशन बिल्ड करना वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। जीरो से नहीं बोलूंगी बट वन से तो वापस स्टार्ट करना ही था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो वहां से वापस स्टार्ट किया, सब कुछ वापस बिल्ड किया। नाउ अब थोड़ा सा वापस बिल्ड होने लगा है, थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ती थी, रात को 2-2 3-3 बजे तक जाके कंप्लीट करना पड़ता था, बट इट्स ओके, वो मैंने कंटिन्यू रखा था कि एटलीस्ट वो जो मेरा सपना था बचपन का कि फेमस होना है वो मैं अचीव कर पाऊँ।
वाओ, दैट्स रियली ग्रेट थिंग कि और इससे मतलब याद कहीं है, ना एवरीवन फॉलो डू फॉलो माय पेज एंड चेक आउट माय पेज अनोखे उपहार बिकॉज वर्क कम फर्स्ट. yes, yes, obviously, I would also suggest everyone to follow her page, Anoke Par, where she has done her creative, she has shown her creativity in different things. Like मैंने भी देखी हुई है और इसमें हम इस पे बात करने वाले हैं जस्ट थोड़ी चीजों के बाद. तो ऑब्वियसली सबको वो चीज में ज्यादा जानने भी मिलेगा. अगर मैं और मैं इसमें थोड़ा आपका ये जो जॉब प्रोफाइल या फिर ये जो आपका करियर लाइफ है, अगर मैं उसमें आपको पूछूं कि आपका एक सजेशन जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं अपने करियर में फोकस करने के लिए या अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा सजेशन या फिर ऐसी एडवाइस आपके साइड से आप ऑडियंस को देना चाहोगे तो? बेसिकली मैं एडवाइस तो यही देना चाहूंगी, मतलब हम बचपन से सुन रहे हैं कि लड़कियों का करियर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लड़कों को अपना करियर बिल्ड करना चाहिए, लड़कियों का करियर इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता. पर मैं करूंगी ना, सेल्फ इंडिविजुअलिटी बिल्ड करना जरूरी है. बड़ा मत करो, कुछ इतना बड़ा मत करो कि ये हो वो, बट खुद के लिए कुछ तो करो. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है, हम लड़कियां हैं तो कुछ ना करे तो चलेगा या कुछ, बट खुद के लिए कुछ तो करना ही चाहिए. भले वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, हमेशा खुद के लिए कुछ तो करते रहना चाहिए. हम लड़कियां हैं इसीलिए हम अपना करियर बिल्ड नहीं कर सकते ऐसा, दिस इज नॉट व्हाट वी थिंक ऑफ. लड़कियां यस. हैं तो भी हम हमारा इंडिविजुअल बिल्ड कर सकते हैं. मेरे पापा ने भी बचपन से यही सिखाया, हमको हमेशा एक इंडिविजुअल की तरह ही ट्रीट किया कि अगर हम हैं तो हमको हमारा करियर बिल्ड करना ही चाहिए. यस, डेफिनेटली हर लड़की को इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए. नहीं चाहिए. बिकॉज आज का जनरेशन ही ऐसा हो गया है कि तुम कहीं पे भी भले तुम शादी करो या नहीं करो या कोई भी एज पे तुम कहीं पे भी आगे बढ़ो, तुम्हारी इंडिपेंडेंसी तुम्हें कहीं ना कहीं वो खुशी दे सकती है. हर बार किसी पे डिपेंडेंट होना, इट्स ऑलवेज समवेयर दैट यू फॉल डाउन. तो ये चीज करेक्ट. बहुत बड़ी बात है कि हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आपने वो चीज को बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से अपने लाइफ में पढ़ाया है. तो थैंक यू सो मच फॉर suggesting our audience with such a good advice. एंड ऑल्सो एवरी वन दोज आर वॉचिंग, आई गेस वो भी कहीं ना कहीं सोचेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है करके. तो thank you. So this was something about your career life. This was something about your job profile or the struggle of your life somewhere. So coming up to Jainism, since आप भी जैन हो मैं भी जैन हूँ और हम एक चीज से जुड़े, एक चीज है जो हमें जोड़े रखता है, दैट इज मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई. एंड बिफोर दैट जो चीज हमें जोड़े रखता है वो है जैनिज्म. तो एक ऐसी जैनिज्म की पॉलिसी, यू कैन से जैन पॉलिसी या फिर जैन फिलोसॉफी दैट यू कैरी ऑन इन योर लाइफ की कहीं ना कहीं वो आपको हर जगह प्रूफ करता है कि आप जैन हो. तो ऐसी कोई जो आप फॉलो कर रहे हो जैन जैन्स जैनिज्म? का मतलब मैं बेसिकली फॉलो तो अभी कुछ नहीं करती, बट जब से लॉकडाउन हुआ है तब से इज लाइक हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग का सुना होगा. इंटरमिटेंट फास्टिंग जब से स्टार्ट किया तब से आई रियलाइज कि नहीं, ये तो हमारा जैनिज्म कब से ही फॉलो कर रहा है. हम रात को नहीं खाते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी हम नवकारसी करते हैं, ये करते हैं, तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग ही है. जैन्स ने ये कब से ही प्रूव कर दिया और अब हम साइंस ने जो प्रूव किया है तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो जैन्स में भी ऐसे बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं जो बेसिकली प्रूवन है, जो जेन्स फॉलो कर रहे हैं और हमको रियलाइज भी नहीं होता है वो सब चीजें. तो मतलब बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि अब रात के सौगन रखना चालू कर देना चाहिए, बिकॉज वो हेल्दी भी होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. तो आई वुड लाइक टू फॉलो दैट प्रोबेबली इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. दैट्स रियली ग्रेट कि आपने अब तक जैनिज्म में शायद कुछ इतना ज्यादा फॉलो नहीं किया, लेकिन सिंस अभी आप लॉकडाउन में आपको खुद को ज्यादा अंदर से समझ में मिला या फिर खुद को वो चीज पे ध्यान तो देने बहुत मिला. सारी चीजें थी ना लॉकडाउन में, मैंने जैनिज्म को बहुत एक्सप्लोर किया है. जैसे हम प्रतिक्रमण करते थे चौमासे में, तो खाना खाने के बाद प्रतिक्रमण करते थे, तो उसमें मेरे को रियलाइज होता था हम कितना सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं. खाना खाने के बाद हमारा वो प्रॉपर जो जितना एक्सरसाइज होना चाहिए खाना खाने के बाद वो हमारा प्रतिक्रमण में हो जाता है. सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के भी हम प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें भी हमारा एक्सरसाइज हो जाता है. तो बहुत सारी चीजें जैनिज्म का साइंटिफिकली भी देखा जाए तो पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा है ऐसा. यस, यस, जो भी जैनिज्म में अभी तक है वो हर चीज साइंटिफिकली प्रूवन ही है एक्चुअली. बस जैन लोग उनको एक नाम से फॉलो करते हैं, उन्होंने एक अपनी आइडेंटिटी दे रखी है, बाकी इट्स टोटली साइंस. सो दैट्स अ गुड थिंग कि आपने लॉकडाउन में ये एक्सप्लोर किया और आप वो चीज को फॉलो कर रहे हो आगे. सो ये शायद जितनी भी गर्ल्स आज हमें फॉलो कर रही है या फिर जितने भी जैन लोग हैं हमारे साथ और बाकी भी आउटसाइडर्स भी है, वो भी शायद कहीं ना कहीं ये चीज फॉलो करने की कोशिश जरूर करेंगे
कि अगर ऐसे एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम ये कर लो, या फिर अगर आप ऐसे खुद को मेंटेन करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो तुम कभी रात को। सामायिक करो ना, सामायिक इज समथिंग वी मेडिटेट। हम यूजुअली Yes. बोलते हैं मेडिटेशन करो, इससे पावर इंक्रीज होगी, हमारी मेंटल पावर इंक्रीज होगी, बट हम सामायिक भी करते ही है। जैनिज्म इज फॉलोइंग दैट सिंस व्हेन, सो जैनिज्म इज So लाइक that's again a good thing, like to motivate our audience कि आपको भी जैनिज्म फॉलो करना है, and it's going to be beneficial for your life. So moving on further, जैन के बाद जो हमें जोड़े रखता है that is MKM, मेवाड़ कन्या मंडल. So yes, also we would like to know the journey of yours. How did you join Mewar Kanya Mandal? Like who introduced you with Mewar Kanya Mandal Mumbai? बेसिकली मेवाड़ कन्या मंडल वाज लाइक, पहले मेरे को कन्या मंडल में इतना इंटरेस्ट नहीं आता था कभी, मतलब ऐसा लगता था क्या कन्या मंडल में करते हैं वो लोग, सेम चीज रिपीट करते हैं। और ये तो मम्मी ने मुझे पुश किया कि नहीं जाना चाहिए, समाज में है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जाओ तुम। तो डांस कंपटीशन था हमारा सम्मेलन में, तो मैंने वो डांस कंपटीशन ज्वाइन किया। तो वहां से सम्मेलन में डांस में पार्ट लिया था, तो वहां पे कविता भाभी मिली, फिर वहां पे न्यू फ्रेंड्स बने, तो उनके साथ हम बाहर जाने लगे। फिर एमकेएम ने इतने सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, तो हम वहां जाने लगे, फिर वहां पे लोगों के साथ मस्ती करते थे, मजा करते थे, फिर पढ़ाई भी करते थे, इतना सारा नॉलेज भी मिलता था। तो वो चीजें बहुत अच्छी लगने लगी, बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगने लगी, तो उसकी तरफ फिर हम बढ़ते गए। फिर हमने खुद का इवेंट ऑर्गेनाइज किया कांदीवली ने, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था वो इवेंट्स में और एमकेएम में। तो नाउ अगर आज हम देखेंगे तो एमकेएम नाउ फील्स लाइक अ फैमिली। हम सब लड़कियां एक साथ होती है, बाहर जाती है, घूमती है, हम मस्ती करते हैं, हम इवेंट्स करते हैं, तो नाउ एमकेएम फील्स लाइक अ फैमिली नाउ। दैट्स गुड. हम तो इसको पिछले 8 साल से ही हम इसको एक फैमिली मान के चल रही है. हम कहीं ना कहीं हम एवरी न्यू डे एक न्यू इंसान से मिलते हैं, तो वो हमारे लिए ऐसा होता है कि एड ऑन टू फैमिली, हमारी फैमिली बढ़ रही है, ये बहुत अच्छा लगता है. और जब ऐसे सुनने मिलता है कि गर्ल्स लोग, ठीक है, जब उनको ज्वाइन करवाना होता है तो एक पुश देना पड़ता है कहीं ना कहीं हाँ, उनको, थोड़ा सा लेकिन पुश तो जब देना ज्वाइन है। हो जाती है ना, तो उनके मुंह से हमने कभी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी कि मेवाड़ कन्या मंडल मंडल इतना बोरिंग है या वैसा कुछ है. तो हमने हमेशा उनके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश की, ताकि वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड रहे और हमारी जो कम्युनिटी है मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई, वो हमेशा आगे बढ़ती रहे और इसमें और भी लोग जुड़े वैसा. तो यस, एमकेएम रॉक्स एज ऑलवेज. एमकेएम रॉक्स। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, कि आपको कहीं ना कहीं मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई आपके लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा बहुत बेनिफिशियल रहा होगा कहीं ना कहीं. सो एटलीस्ट मतलब यू कैन स्पीक एटलीस्ट इन शॉर्ट समथिंग दैट गॉट यू लाइक मोर, ऐसा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हुआ हो. मेवाड़ कन्या मंडल से बेसिकली मैंने दो क्वालिटी सीखी है, इट्स लाइक मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। बिकॉज बीइंग अ मंत्री, मुझे सबको इकट्ठा करना, सबको लाना, इवेंट्स में लेके जाना वाज समथिंग डिफिकल्ट। इतनी सारी लड़कियों को मैनेज करो। फिर जब इवेंट्स होते थे, इवेंट हुआ हमारा, तो मैनेजमेंट वाज, तो दो चीजें मैंने बेसिकली बहुत ज्यादा सीखी है मेवाड़ कन्या मंडल से, इज मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। और फिर लोगों से बात करते थे तो सोशलाइज होने का मौका भी मिलता था, कि इतने सारे लोगों को हम जानते, उनके पर्सपेक्टिव जानना, तो बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है मेवाड़ का। यस, यहाँ पे हर टाइप के लोग होते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई बेसिकली एक पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से नहीं सिलेक्ट होते. पूरे जो इंसान जैन है आज वो मेवाड़ कन्या मंडल से जुड़ा हुआ है. तो यस, बेसिकली हमें बहुत बहुत ज्यादा कुछ सीखने मिलता है. मैं आपकी बात में अपनी भी बात करूँ तो बहुत कुछ सीखने मिला हुआ है. तो थैंक्स अ लॉट कि आपने मेवाड़ कन्या मंडल को इस स्टेटस पर रखा है अपने लाइफ में, और आप उसको इतना मानते हो और आपने इतना कुछ सीखा भी उससे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमने मेवाड़ कन्या मंडल के थ्रू आपके अंदर कुछ क्वालिटीज बिल्ड की है, या फिर आपकी कोई क्वालिटीज बाहर लेके आए हम. तो वो चीज भी हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है. तो यस, अब एक चीज, सिंस हम मेवाड़ कन्या मंडल मुंबई की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा आपके माइंड में होगा कि सिंस कन्या मंडल है, इतनी लड़कियां है, तो आपके साइड से कुछ एक सजेशन कि कन्या मंडल को ये भी करना चाहिए, या फिर कन्या मंडल में ये चीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपके साइड से एक एडवाइस. बेसिकली अभी तो कन्या मंडल इज डूइंग वेरी गुड। हम हर रोज कुछ नया लेके आते हैं। लॉकडाउन में भी हमने इतना इंटरेस्ट किया, टैलेंट राउंड किया, हर गेम्स खेल रहे हैं, अब हम टॉक शो भी कर रहे हैं। इट्स लाइक एवरीथिंग, हर महीने कुछ नया लेके आते हैं हम कन्या मंडल में। तो वैसे भी कन्या मंडल इज डूइंग वेरी गुड।
थैंक यू। और ऑल्सो मैं सबको बता दूं कि हमने एक MKM टैलेंट शो करके एक इवेंट भी किया था, जिसमें किंजल मैम ने हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और वो थर्ड राउंड तक पहुंचे थे। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच। दिस इज आई गेस एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर फर्दर, कि आपके साइड से कुछ या मेरे साइड से कुछ रह गया हो या आपको कुछ शेयर करना हो फॉर द ऑडियंस, टू द ऑडियंस, एनीथिंग। तो फॉर ऑडियंस में बेसिकली सबको यही सजेस्ट करूंगी कि गर्ल्स नेवर गिव अप ऑन समथिंग। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जस्ट गिव अ ट्राई टू इट। मतलब हर चीज एक बार करके देखो। खुद के लिए कोई इंडिविजुअलिटी, कोई पर्सनालिटी एटलीस्ट खुद के लिए बनानी चाहिए। कुछ बड़ा मत करो, कुछ इतना एग्जैजरेटिंग मत करो, लेकिन खुद के लिए, खुद की पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए डू समथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी। डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। अब जरूरी नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर चीज चूज करें, हमने पढ़ाई में ही कुछ किया तो उसमें ही कुछ करना है, नहीं। जो चीज से हमको खुशी मिलती है ऐसा कुछ करो। Yes, basically, if you choose your passion as your career, you will never get bored of anything. Yes. So that is a good saying कि you should always go choose your career where you are interested in, और what is your passion, like जो आपका passion है आप उसको as a career अगर choose करते हो तो आप कभी बोर नहीं होगे और ना आप अभी आपका इंटरेस्ट खत्म होगा। सो किंजल ने हमें बहुत सारी बातें बताई है, बहुत ज्यादा मोटिवेट भी किया है हमारे ऑडियंस को उनकी एक इंस्पिरेशनल कहानी से। मैं बता दूं एवरीवन लाइक जो भी आज अभी ज्वाइन हुए हैं, आई गेस 25-30 लोग पहले ज्वाइन हो चुके हैं और अभी शायद चले भी गए आधे। तो मैं उनको बता दूं कि किंजल मैम का एक पेज है अनोखे पर। शी हैज शोन अ लॉट ऑफ आउट ऑफ हर क्रिएटिविटी। आई वुड suggest you all to join and follow the page. And also I would like thanks a lot to Kinjal because she is in village now, and still she has taken that courage and she has accepted the opportunity of coming up here. So thank you so much. थैंक यू टू एमकेएम ऑल्सो, बिकॉज मेरे लाइफ के बारे में डिस्कस करना, मेरे बारे में लोग जाने, दैट वाज ऑल्सो वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। वो मेरा MKM थोड़ा थोड़ा General पूरा होता नजर आता है। मुझे फेमस होना है, मुझे लोग जाने हैं, वो कहीं ना कहीं एमकेएम की वजह से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। MKM is for the girls. हम खुद के लिए कुछ करते नहीं, इट्स लाइक टोटली फॉर द गर्ल्स। तो ऑब्वियसली ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही थी और आपने वो चीज एक्सेप्ट की। थैंक यू सो मच। Thanks a lot to you for bringing up everything in like all you could give to the audience, and also thank you viewers. We have with us निकिता सूर्या, और also किंजल ने शायद अपनी बातों में कविता भाभी का जिक्र किया था, वो हमारे कन्या मंडल के प्रभारी है। तो थैंक्स टू कविता भाभी also for giving us such girl with dance choreographer, and thanks a lot all the viewers. I would like to thank all the guests, those who are joining, and also the committee members of Mewad Kanya Mandal Mumbai, those who are here. Nikita Surya, the president of Mewad Kanya Mandal Mumbai, Divya Loda, the treasurer of Mewad Kanya Mandal Mumbai, all the bhabis, those are the prabharis, Kanya Mandal prabharis, those who have always supported us with everything, and also yes, they are supporting her, and all the girls, those who have joined us, जो हमारे साथ, जिनके बिना हम अधूरे हैं। Obviously मंडल एक अकेले इंसान से नहीं चलता, तो the group that we carry on, thanks to you all. So yes, we wind up here. Thank you so much, Kinjal. थैंक यू। Bye everyone, take care. बाय। Thank you, Nikita.